Okay, I think so. We should start it as the students are coming. They will be joining us. Okay, so I think so. This is understood to all of you. This diagram, which was we discussed, this one, the stratification of tropical rainforests. We have to move through so much quickly so that we can finish uh, this lecture in this class. Okay, so this is the same thing which we have discussed previously, but the biome is different. Biome tropical seasonal forest or savanna, which is located on the equator or above the equator. Okay, on and above the equator, somewhere on the equator, side by side with the tropical rainforest, but somewhere they are located above. Okay, so these are all located between the tropics, 30 degrees north and 30 degrees south. Okay, and similarly over here you can see that the precipitation is 15,600 millimeters, and uh, and the temperature is about 21.8 degrees Celsius. So these are temperate seasonal forest or savanna vegetation. Over here, the type of vegetation cover is totally different as compared to the equatorial region. ठीक है, यहाँ पे देखें आपको तो आपको ज़्यादातर जो है वो स्टंटेड ग्रोथ या टॉल तो नज़र आएंगे, लेकिन आपको एकेशिया ट्रीज विद वीवर बर्ड नेस्ट नेस्ट कीनिया इन ईस्ट अफ्रीका दे आर लोकेटेड ट्रॉपिकल सवाना in Orinoco basin of eastern Colombia. So the type of vegetation they would be different. ठीक है, tall तो होंगे, trees trunks जो होते हैं इनके थोड़े से broad होते हैं. ठीक है, so this type of vegetation would be found there, and there would be hardly on some trees would be hardly any sort of leaf present. So यहाँ पे 6 month जो है आपके पास precipitation जो होती है वो नहीं होती है, और 6 महीने तकरीबन आपकी precipitation in this region would happen. ठीक है, अच्छा, नाउ ट्रॉपिकल सवानाज लोकेशन इक्वेटोरियल जोन बिटवीन लैटिट्यूड 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड 30 डिग्रीज साउथ, ड्राई ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल, टेम्परेचर वार्म ऑल द ईयर, एनुअल मीन is temperature more than 180 degrees Celsius. Precipitation is distinct seasonality in rainfall and large inter-annual variation. Typical example is South America. Okay. Then characteristics occur on land surfaces of little relief, often on old plateaus they are located, dissected by rivers, soil poor in nutrients, especially phosphorus. Dominant species are fire adapted, subjected to recurrent fires. Grass cover. Over here, यहाँ पे हमारा जो रीजन है ये ज़्यादातर ग्रास कवर्ड है. With or without wood, vegetation is always present. Woody component is short-lived, less than a few decades. ठीक है, 2 layer vertical structure, ground level grass and shrubs or trees आर प्रेजेंट. यानी यहाँ पे जो है जैसे हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखा था उसकी 4-5 लेयर्स मौजूद थी, 5 लेयर्स. यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 लेयर्स हैं, एंड द ग्राउंड वुड बी कवर्ड बाय द ग्रास, एंड above that जो हमारे पास जो ट्रीज उसमें लोकेट कर रहे हैं दे आर ट्रीज और द shrubs. Support a large and varied assemblages of herbivores, invertebrates and vertebrates, grazing and browsing. Okay, now ये है सारी आपके पास जो वेजिटेशन कवर है. इंटरेक्शन बिटवीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, सॉइल मॉइस्चर, डिफाइनिंग बायोम्स. सो दीज आर द टाइप ऑफ, देखो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप के आपके पास यहाँ पे प्लांट जो है वो नजर आएंगे. अच्छा, मैं आप लोग को थोड़ा सा एक असाइनमेंट दे देती हूँ इसी के ऊपर. सो यू हैव टू क्या करना होगा उसमें कि मैं मतलब आपको अपलोड कर दूंगी सो दैट यू कैन सबमिट इट. उस असाइनमेंट में आप ये करेंगे कि टाइप ऑफ वेजिटेशन among different types of biomes.
उसके ऊपर एक आप अपना असाइनमेंट जो है वो रेडी करेंगे इंशाल्लाह ताला, सो दैट यू वुड कम टू नो एंड देयर अडेप्टेशन टू type of vegetation and their adaptation in different types of biomes. Okay, this is the topic of your assignment. Next assignment, I have to write it also, type of vegetation and their characteristics in different types of biomes. Okay, this is the title or the topic of your assignment. Next upcoming assignment, wetlands are the areas of areas of water which are covered by water. Terrestrial भी हैं हमारे पास, aquatic communities come together. Land जैसे जो आपके पास ये होते हैं, when you can find the mangroves are there, and these mangroves are the regions of wetlands, which are swamps, ठीक है, lakes, rivers, ठीक है, these are basically the areas which are covered by water. Marshes, salt marshes, so they are basically the regions of wetlands. So these wetlands are also have a specific type of their life form. Okay, and that is why they are classified as a biome too. Land consisting soil saturated with water. अच्छा, ये यू आर आस्किंग दैट टेरेस्ट्रियल ही करेंगे आप अभी, इसका तो इतना वो नहीं है. टेरेस्ट्रियल बायोम्स include swamps, marshes, bogs, salt marshes, and a mangrove. Plant can tolerate low oxygen. Important habitats for wide variety of animals, waterfowl, fish, invertebrates. Protect coastal areas from ravages of hurricanes. And wetland sediments immobilize potentially toxic or polluting substances dissolved in water, and thus natural water purifying plants are present there. Estuaries are what are found at the mouths of the water when the river enters into the sea, that leaves its sediment in the form in some form, and that is basically known as estuaries. Are present at the These are present found at the mouths of river. Mix of fresh and salt water. Extremely productive systems होते हैं ये भी, ठीक है. Human impact in inputs into fresh water biomes. Acid rain and eutrophication is happening in these freshwater biomes. Acid rain combustion of fossil fuel sulfur की वजह से हो रहा है. Nitrogen oxide, which is basically decreasing the pH of the region of the water, and streams and rivers. Eutrophication is addition of limiting nutrients such as nitrogen and phosphorus to aquatic systems, and this is due to the surface runoff. And in the surface runoff, what happens on the farms when you apply too much amount of fertilizers there, so these fertilizers will move away with water, and they enter into the into the sea water body or river, the river water, and here they increase the productivity of the algae. Okay, and due to that thing, the decrease in the water oxygen would happen in the river water, which that phenomenon is known as eutrophication. Sewage or your industrial waste, fertilizers, animal waste from agricultural lands, oxygen depletion would be caused in water. ठीक है, जो आपका सारा वेस्ट फार्म लैंड से जा रहा है रिवर्स के अंदर बाय वॉट रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ, जो बारिशें वगैरह हो रही हैं उसके थ्रू, and it enters into and ends up into the rivers, and in the rivers this will increase the amount of the production or the growth of algae, and the algae decomposition requires oxygen to be taken from the water. ओके, और इसी तरीके से जो वाटर बॉडी है आपकी रिवर वगैरह उसके अंदर वो ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, एंड फिश स्पीशीज एंड अदर एक्वेटिक लाइफ विल बी badly affected by that. So this is eutrophication, which is basically the human impact into freshwater biomes. Now marine aquatic systems are classified principally by water depth. ये हमने देखे, यहाँ देख लेते हैं बेंथिक जोन कौन सा है. मरीन इकोसिस्टम जो है are classified principally by water depth. Variation in marine environment, temperature, salinity, depth के through currents,
substrata and at the edge of ocean and tides. Depth littoral zone है, intertide अगर हम देखें highest and lowest tidal water levels. Neritic zone है, second extend to the depth of 200 meters. ठीक है, हाई प्रोडक्टिविटी यहाँ पे होती है. ओशन सरफेस, ओशन जोन, बिलो नेरेटिक, स्पार्स न्यूट्रिएंट, लो प्रोडक्शन एट द बॉटम. तो ये सारा ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का रीजन है. दिस इज लिटोरल जोन. then that is when you are moving in the horizontal way, you can basically characterize or classify the sea into three. ठीक है, that is the littoral zone, then neritic zone which is highly productive, and then your oceanic zone. ठीक है, और अगर हम जाने में डेप्थ के ऊपर बात करें तो डेप्थ में फोटिक जोन विच बेसिकली कवर्स अबाउट 200 meters ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ ओशन. और उसके बाद जो है रीजन आपके पास ए फोटिक जोन विच डज नॉट रिसीव एनी light, that is why we are calling it, or very little amount of light is being penetrated into the aphotic zone. Photic zone हम क्यों कहते हैं इसको? with sufficient light for photosynthesis. ठीक है, 200 meters तक का जो डेप्थ है that region is known as photic zone. उसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स काफी मौजूद होते हैं. दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, दिस इज द रीजन which can absorb maximum amount of sunlight, and after this photic zone the absorption or the penetration of the sunlight becomes reduced. That is why we call it aphotic zone. ठीक है, open ocean जो है और but in coral reef, shallow water of warm ocean, temperatures 20 degrees Celsius all year, very productive and high diverse like tropical rain forest in. यानी ये जो रीजन है आपके पास ये नेरेटिक जोन वगैरह, यहाँ पे जो है वो काफी प्रोडक्टिविटी होती है. एंड दिस इज क्वाइट डाइवर्स लाइक द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द टेरेस्ट्रियल बायोम. प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग एंड कोरल ब्लीचिंग. जो कोरल्स हैं हाईली प्रोडक्टिव होते हैं. ये कोरल ब्लीचिंग क्यों हो रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब इनटू द सी वाटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन की वजह से जो कोरल्स हैं दे गेट ब्लीच्ड. ठीक है, ये कोरल्स की जो कंपोजिशन होता है उसमें मेन इंग्रेडिएंट कैल्शियम कार्बोनेट है. ठीक है, तो इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो ब्लीच आउट कर देता है उनको कोरल्स को. दिस इज बेसिकली डिस्ट्रॉइंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ दोज रीजन्स. अच्छा, आप एक काम करें, एक्वेटिक को भी देख लें फिर इसमें ना. टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बायोम बोथ ऑफ देम यू नीड टू कवर. ठीक है, ताकि आपको ये डिफरेंस पता चले कि टेरेस्ट्रियल बायोम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एंड एक्वेटिक. क्योंकि टेरेस्ट्रियल तो ऑब्वियसली मैंने ही काफ़ी सारे आपको भी बता दिए, डेजर्ट का और उसका जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें. लेकिन अगर आप इसको देखना चाहें कि यहाँ पे अगर देखना चाहें कि एक्वेटिक जो आपके पास बायोम्स हैं उसकी भी प्रोडक्टिविटी देखें, ये क्या है, उसके टाइप्स ऑफ स्पीशीज, हाउ डू दे वेरी. तो इसको दोनों की कर ले, मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर. जो आपने टॉपिक दिए ये इससे कोई आप कोई असाइनमेंट देंगी यहाँ पे या इसी से यही असाइनमेंट बेटा यही असाइनमेंट है. टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स, बोथ ऑफ द मैम टाइप्स ऑफ. कितना लेंथी मतलब लेंथी 10 मार्क्स का असाइनमेंट होगा ये. ठीक है, ये 10 मार्क्स का असाइनमेंट है आपका, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के आएंगे. एक तो टेरेस्ट्रियल भी आएगा आपका और आपके पास बायोम, और जो वो है क्या नाम है एक्वेटिक बायोम, उसकी भी दोनों के करेंगे ना तो इट वुड कैरी 10 मार्क्स. ठीक है, तो कितने पेजेस का होना चाहिए मतलब? देखो पेजेस तो बेटा मैं कैसे बताऊं, पेजेस तो एटलीस्ट यानी कि अगर आप ऑब्वियसली लिखेंगे इसको सबके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी सबके, तो इन टोटल 7-8 पेजेस आर क्वाइट इनफ. क्योंकि आपने उसको कैरेक्टरिस्टिक्स उसके प्लांट्स के बताने हैं. ठीक है, और उसकी अडेप्टेशन बतानी है. तो 7-8 नॉट मोर देन दे शुड बी. हर चीज को मतलब हाँ, आपने डिटेल में ही बताना है उसको, ताकि आपको याद रहे चीजें कि जैसे अब ये जो सवाना वेजिटेशन है इसके जो प्लांट होते हैं वो किस तरह के होते हैं. ठीक है, उनके जब आप निकालेंगे यू विल गेट इट आउट, आपको आराम से इंटरनेट पे मिलेगा सारा कुछ. ठीक है, किस तरह के प्लांट्स हैं, स्पार्स हैं, स्पार्सली वेजिटेटेड हैं, और ट्रंक्स कैसे होते हैं इनके, और ब्रांचेस कैसी होती हैं, लीव्स हैं नहीं है कैसे हैं. ठीक है, तो ट्रॉपिकल का तो मैंने पहले ही बता दिया आपको. एंड टंड्रा में आप देखेंगे, टंड्रा का भी आप देखेंगे इसमें वेजिटेशन कैसी है, टाइगर की वेजिटेशन कैसी है. तो इस सब के कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे ख्याल है अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसके नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन 6-7 पेजेस से का बनेगा बोथ ऑफ देम. वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप लिखेंगे ना, तो दैट वुड कैरी, यानी कंसाइज हो बहुत ज्यादा, ये भी ना हो कि बस लग रहा है कि
बस लिखा हुआ है मैम सारा कुछ, उसको समझ में नहीं आ हैंड रहा। रिटन चाहिए आपको या हम वर्ड पे डाल दें? हैंड रिटन ही मेरा ख्याल है अब तो चलेगा, क्योंकि अब वर्ड पे तो फिर आप लोग कॉपी कर लेते हैं ना, एग्जैक्टली यू कॉपी इट आउट फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, तो वो फिर मज़ा नहीं आता उसमें हैंड रिटन में। लेकिन 1 2 3 4 5 इस तरह के पॉइंट वाइज आप उसको जॉट डाउन करेंगे, ठीक है, तो यू विल लर्न इट आउट। और यही चीज़ मैं आपके एग्जाम में भी पूछ सकती हूँ फिर, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोम्स, दैट वुड बी द टॉपिक, स्पेशल टॉपिक, ठीक है, तो प्लांट्स टाइप्स ओके का, मैम। ठीक है। अब जैसे और इसमें इसकी लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें तो इसी में है, नीडल लीफ एवरग्रीन इन सीरिया, इन सायरा निवेडा यूएस में, ये कौन सी जगह है, ठीक है। ब्रॉड लीफ एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो द टाइप, आप उसके साथ डायग्राम भी लगा सकते हैं अगर आपके पास है उसकी, जो आपने प्रिंट आउट, अगर प्रिंट आउट नहीं भी है तो आप जो क्या नाम है पिक्चर है वो फोटोकॉपी करा के और वो लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू, या ये फोटोग्राफ है तो उसको प्रिंट आउट लगा के अपने असाइनमेंट को अच्छा बनाने के लिए आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। मैम, और डेडलाइन कब तक होगी असाइनमेंट की? थोड़ी ज्यादा दूंगी, देखिए अभी तो ईद स्टार्ट हो गई है ना, ईद की छुट्टियां तो मैं नहीं चाहती आप लोग की ईद की छुट्टियां यस स्पॉइल मैम, हों। प्लीज ईद के बाद। हाँ, हाँ, ईद के ईद के बाद बाद की तक की रखूंगी। दीजिएगा जी क्योंकि हमें ऑलरेडी और जी भी जी। वो मिले हुए टर्म पेपर्स वगैरह। हाँ नहीं नहीं, वो ईद के बाद ही की रखूंगी, ठीक है। 10 मार्क्स का हो जाएगा, ओके, 5 मार्क्स थैंक यू। का मैंने आपको पहले दिया हुआ है। बस एक फिर रह जाएगा, ईद के बाद आप ये सबमिट कराएंगे, उसके बाद 5 नंबर का एक असाइनमेंट फिर आपको और दूंगी बाद में इंशाल्लाह, ठीक है। तो इट विल कवर 20